बिफोर वी बिगिन द वीडियो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। तुम्हें बताना है कि तुम्हारे अटेम्प्ट 1 में कितने मार्क्स आए थे एंड तुम अटेम्प्ट 2 में कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताओ। एंड अटेम्प्ट 2 में जितना भी मार्क्स टारगेट कर रहे हो लिखो कि येस आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट मच मार्क्स इन अटेम्प्ट 2। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे यू नीड टू एनालाइज द मॉक टेस्ट specifically for BITSAT. Like this is applicable for any exam, but now since we are talking about BITSAT, let us talk that how you can analyze your mock test in the given time कि जितना भी टाइम बचा है इस एंड के डेज में when you will be giving so many mock tests. It is important to know कि what is the real strategy and what is the right way to analyze mocks, because in FODU club we are mentoring so many students and वो हमको constantly एक चीज़ आके ये बोलते हैं कि भैया we are like giving tests, but काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है कि ना एक पॉइंट पे स्टक हो जाता है स्कोर एंड दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव आफ्टर दैट पॉइंट। सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही सब कुछ नहीं होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू रियलाइज़ कि जितना टाइम तुम मॉक टेस्ट देने में लगाते हो, एक मॉक टेस्ट देने में लगाते हो, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना। काफ़ी सारे बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट एंड हियर वी गो। Trust me, watch this video till the very end. This video is going to change the way you have been analyzing mock tests till now. I'll give you all the secrets and all the strategies, and after which if you follow all the strategies correctly in the following mock tests which you'll give, you'll definitely increase at least 50 to 60 marks, and you can easily increase up to 100 marks also. It's not a very big thing, but you'll definitely see a great increase in your score. So unlike other people, I just won't sit here and tell you what to do. I'll take you directly into the mock tests and I'll tell you how to actually analyze the mock tests. So here let's open the website first. So I'll analyze one of the mocks of our students and you can learn from the very same thing how you can analyze the same for you, right? I'll just quickly analyze one of the mocks that he has given. This is the mocks we have specially designed for the second attempt. So he scored 291 out of 390, which is pretty good score. So okay, so broadly we'll analyze first. तो एनालिसिस कैसे करते हैं? बहुत बेसिक एनालिसिस जैसे कि सब करते हैं कि यहाँ पर एज यू कैन सी सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक्चुअली में उसके करेक्ट कितने हुए। ठीक है, करेक्ट मार्क्स हैं उसके 300 एंड उसके नेगेटिव हुए हैं -9. सो ओवरऑल ही हैज़ स्कोर्ड 291. This is the very basic analysis and उसने 63 marks का he has skipped. बाकी here you can see the subject wise analysis कि physics में इतना है, chemistry में इतने हैं, English, LR, maths इतने उसके. This is the breakdown of it and you write all of this. You need to write all of these things. और अगर कोई mock दे रहे हो you are visible, you just see कि किस वाले एरिया में तुम्हारे कितने आ रहे हैं। जैसे कि LR में ही हैज़ डन प्रिटी वेल, ठीक है, एंड वी कैन सी दैट कि इंग्लिश में ही नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट। और हियर इज़ द टाइम एनालिसिस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि उसने 78% ऑफ द टाइम ही हैज़ गिवन ऑन द क्वेश्चंस विच आर करेक्ट and he has given 8% of the times on the questions which are incorrect, and also 14% of his time on the questions which he has skipped. So 14% on questions which he is skipping is a lot. ठीक है, अगर ये 14% को वो incorrect question answers में लगाता है, so he can actually make the incorrect answers, few of the incorrect answers right. So this is one thing. Obviously this is not enough. You need to take pen and pencil and you need to analyze it yourself. Now let's see how you can analyze it yourself. सबसे पहले you need to write down how many question did you get right, how many question did you get wrong and how many questions did you skip. ठीक है ना, this is the very basic thing. इसके बाद you need to do the marking. ठीक है ना, you need to do marking कि कौन सा क्वेश्चन तुमने तुरंत कर लिया, तुरंत को we'll say T एंड मान लो किस क्वेश्चन में तुम्हें ज़्यादा टाइम लग गया तो हम उसको Z बोल देते, तो TZ. सो तुरंत हुआ को हम बोलेंगे Z एंड ज़्यादा टाइम लगा को we'll mark it as Z. सो मार्क ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ इट माइट टेक सम ऑफ योर टाइम बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ज़्यादा मार्क्स देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टू एनालाइज द गिवन मार्क्स in this correct manner is very important. So like suppose first question, second question, third question, fourth question. ठीक है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे तुरंत हो गया, सो मार्केट एज T. सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा, मार्केट एज Z. थर्ड में ज़्यादा टाइम लगा, मार्केट एज Z. फोर्थ में ज़्यादा तुरंत हो गया, सो मार्केट एज T. ऐसे अपने लैंग्वेज में टैगिंग कर लो. नाउ अगर मान लो कि तुरंत हो गया एंड इट इज़ करेक्ट एज वेल,
देन लीव इट, उसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब मान लो कि उसमें ज़्यादा टाइम लगा एंड वो इनकरेक्ट हो गया, सो मार्क इट, ठीक है, मार्क इट। ज़्यादा टाइम लगा एंड वो करेक्ट है, देन ऑल्सो मार्क इट। तुरंत हो गया लेकिन इनकरेक्ट है, देन ऑल्सो मार्क इट, ठीक है ना। सिर्फ एक ही केस में यू विल हैव टू लेट गो द क्वेश्चन, दैट इज तुरंत हो गया एंड इट्स करेक्ट, एंड बाकी सारे केसेस में यू नीड टू मार्क द क्वेश्चंस। नाउ इंडिविजुअल क्वेश्चंस के हिसाब से यू नीड टू फिगर आउट कि मान लो कि ज़्यादा टाइम लगा एंड इनकरेक्ट हुआ, ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ऐसे क्वेश्चन से तुम्हें बचना है। यू नीड टू फिगर आउट कि एक्चुअली में कहाँ प्रॉब्लम हुई, राइट। नाउ अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली में एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो सपोज फॉर ए क्वेश्चन तुम्हें फिगर आउट करना है, वॉज इट अ कंसेप्चुअल मिस्टेक, and this is valid for every question, whether it is right, whether it is wrong, or whether you have skipped the question, it doesn't matter, you need to do this for every question. Conceptual mistake था कि silly mistake था, ठीक है, या फिर थर्ड टाइम का लिमिटेशन आ गया था कि ज़्यादा टाइम लग रहा था। दिस 3 थिंग्स यू नीड टू एनालाइज। कंसेप्चुअल था तो क्या दिक्कत आई, फॉर्मूला याद नहीं आया, ठीक है, कि कंसेप्ट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आई, या तुम्हें कॉन्सेप्ट आता ही नहीं था, ठीक है ना, तुम्हें आता ही नहीं था कंसेप्ट, दैट वाज द प्रॉब्लम। पूरे डीप में घुस के एक एक चीज़ को तुम्हें पकड़ना है, यू नीड टू फाइंड आउट द रूट कॉज, देन ओनली यू विल बी एबल टू इम्प्रूव। अब सिली मिस्टेक्स में हमको आगे बढ़ना है कि सिली मिस्टेक्स में भैया कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी क्या, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी क्या, या फिर फार्मूला मैंने गलत लगा दिया, फार्मूला ही मैंने गलत अप्लाई कर दिया, या फिर मैंने कंसेप्ट ही गलत अप्लाई कर दिया, आता था लेकिन गलत कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। टाइम में हो सकता है कि भैया ज़्यादा टाइम लग गया। सो ऑल दिस पॉसिबल केसेस यू नीड टू कवर अप एंड टैग द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। एंड एक बार तुम्हारे पास में ये चीज़ हो जाती है, फिर इंडिविजुअल क्वेश्चंस उठा के देखो कि वेयर एग्जैक्टली एंड हाउ एग्जैक्टली डू आई नीड टू इम्प्रूव। एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं ना बच्चे, दैट they think that कि just seeing the solutions of the questions which I have skipped and which are incorrect is enough. No, that's not the case. That's not how you do mock analysis. फिर you are just wasting your time giving mocks, ठीक है। mocks are supposed to improve your score, but अगर तुम ढंग से एनालाइज ही नहीं करते हो, it's just a time waste. The next tip is ये सारी चीज़ें तुमको एक नोटबुक बना के करनी है, ठीक है। वी हैव गाइडेड, जो कि बच्चे हमारे साथ में मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं, वी हैव गाइडेड देम थॉरोली कि एक नोटबुक बनानी है, एंड एक नोटबुक में अपने सारे के सारे कंसेप्ट, मिस्टेक, सब कुछ लिखना है। कि मान लो कि वो क्वेश्चन है, उसका एक छोटा सा डायग्राम बना लो एंड वहाँ पर लिख लो कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, एंड एक छोटा सा सोल्यूशन लिख लो, बहुत छोटा सा 2-3 लाइन में, एकदम तुम्हारा शॉर्ट नोट्स बन गया, एंड एक नोटबुक भी तुम्हारी बन गई मिस्टेक्स की, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक शॉर्ट नोट्स। मान लो कि कोई फ्रिक्शन का प्रॉब्लम आया एंड छोटा सा एक तुम यहाँ पर बना लिए 5 kg 10 kg, यहाँ कितने का, मान लो कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5 म्यू। सो ऐसा एक छोटा सा एक क्वेश्चन बना लो और यहाँ पर नीचे सोल्यूशन लिख दो, और अगर तुम्हारा पेपर में ये सही हुआ था तो वो लिख दो, और ये लिखो कि टाइम लगा था। अगर टाइम ज़्यादा लगा था तो इस टाइप के 5-6 क्वेश्चंस जाके सॉल्व कर लो, एंड ये वाला तुम्हारा कंसेप्ट डन हो जाएगा। अगर ये तुम्हारा इनकरेक्ट हुआ था तो यहाँ पर लिख लो कि ये इनकरेक्ट हुआ था, एंड फिर जाके इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये वाला कंसेप्ट डन हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू विल इम्प्रूव, ओके। एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट, दिस वॉज द सेकंड स्टेप, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा बेसिक था, आई कॉल्ड इट 0th स्टेप, कि बहुत जैसे कि मैंने दिखाया एक बेसिक एनालिसिस करनी है कि कितना टाइम किस में लगा एंड कितने मेरे करेक्ट हुए, कितने मेरे गलत हुए। सेकंड स्टेप इज़ टू डू द मार्किंग्स प्रॉपरली, कि ज़्यादा टाइम करेक्ट, ज़्यादा टाइम इनकरेक्ट, कम टाइम करेक्ट, कम टाइम इनकरेक्ट, इस तरीके से टैगिंग कर लेनी है। आफ्टर द टैगिंग यू नीड टू मेक अ नोटबुक, एंड नोटबुक में बना के प्रॉपरली तुम्हें ऐसे शॉर्ट नोट्स के टाइप में हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है। एंड द लास्ट थिंग, द वेरी वेरी लास्ट थिंग इज़ टू रिवाइज दैट। ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया, ठीक है। आई टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, आई टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड कीप दिस इन योर माइंड। मॉक टेस्ट देने का पर्पस क्या होता है, कभी सोचा ये तुमने? आस्क योर सेल्फ कि मॉक टेस्ट देने का पर्पस क्या होता है। मॉक टेस्ट देने का पर्पस ये नहीं है कि यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएं एंड यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, ये पर्पस ही नहीं है। मॉक टेस्ट देने का सोल पर्पस ही ये है दैट यू मेक मिस्टेक्स, बट यू मेक न्यू मिस्टेक्स एवरी सिंगल टाइम। अगर मॉक 1 में जो मिस्टेक्स करी है और मॉक 2 में भी वही मिस्टेक कर रहे हो, मॉक 3 में भी वही मिस्टेक कर रहे हो, फिर फ़ायदा ही क्या हुआ मॉक टेस्ट देने का? जैसा कि मैंने बताया, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो मेक मिस्टेक्स बट मेक न्यू मिस्टेक्स एवरी टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नोट डाउन दोज मिस्टेक्स, रिवाइज देम एवरी सिंगल डे बिफोर गोइंग टू स्लीप. 10-15 मिनट लगेंगे और रिवाइज करने, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑर्डर फॉर यू टू इम्प्रूव. ये चीज़ यू नीड टू रियलाइज. सो रिवाइज दैट नोटबुक एवरी सिंगल नाइट बिफोर स्लीपिंग एंड यू विल फिगर आउट कि हर एक मॉक टेस्ट के साथ में यू आर इम्प्रूविंग सिग्निफिकेंटली, यू आर परफॉर्मिंग रियली ग्रेट. तुम्हारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते जा रहे हैं. ऐसा होता है ना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बहुत जल्दी में सिलेबस कंप्लीट तो कर लेते हैं, भैया हमारा 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाते, तो पैचेस छूट जाते हैं बीच बीच में. सो मॉक टेस्ट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई दोज पैचेस एंड वर्क ऑन दोज पैचेस. सो आफ्टर गिविंग द मॉक टेस्ट, आफ्टर एनालाइजिंग इट इन दिस मैनर, वर्क ऑन दोज पैचेस अकॉर्डिंगली कि उसमें तुमको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या फिर उसमें तुम्हें टाइम बाउंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है, या फिर तुम्हें उसके फॉर्मूला रिविजन की ज़रूरत है, या फिर कंसेप्ट ही वीक है तो कंसेप्ट को वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत है. ये पूरा क्लैरिटी तुम्हें मिल जाएगा. एंड जब तक एक मॉक टेस्ट का यू हैव नॉट इम्प्रूव्ड एवरीथिंग, जो भी उस मॉक टेस्ट में गलती हुई थी, डोंट मूव टू द नेक्स्ट मॉक. ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउ यू नीड टू मेक दैट नोटबुक ऑफ मिस्टेक वाला नोटबुक, एंड हाउ यू नीड टू लाइक राइट डाउन द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. सो एक मॉक मैंने फॉर एन एग्जाम्पल लिया है, एंड इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 28 ये वाला गलत है, एंड उसका ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत है. सो मैं इसका शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द क्वेश्चन. मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया. यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है प्रॉपर्ली, मैं सोल्यूशन पढ़ लिया, मुझे चीज़ें समझ आ गई, मैंने अपने हाथ से लिख के एक बार सॉल्व भी कर लिया. ठीक है, कंसेप्ट मुझे समझ आ गया. नाउ टू रिटेन दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बहुत शॉर्टली लिख लूँगा कि यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, और ठीक है इन दोनों के भी मतलब सराउंडिंग के साथ में टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है 30 डिग्री. हाँ, 30 डिग्री दिया हुआ है, और मुझे ऑप्शंस में दिख रहा है कि मुझे पूछ रहा है कि कौन सा कूल फास्टर होगा, तो मैं यहाँ पर छोटा सा लिखूँगा कूल फास्टर और क्वेश्चन मार्क. तो जैसे ही मैं इस छोटे से डायग्राम को देखूंगा, मेरे को ये इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में मुझे याद आ जाएगा कि व्हाट वाज द क्वेश्चन. एंड यहाँ पर मैं साइड में छोटा सा यहाँ पर सोल्यूशन लिख लूँगा कि dq/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq/ms. मैं जैसे ही इतना देखूंगा, मुझे सोल्यूशन वापस याद आ जाएगा, एंड मुझे इतनी मेहनत वापस करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे 5 सेकंड के अंदर, if I revise this the next day, within 5 seconds I'll be able to recall this question, and मुझे ये चीज़ याद आ जाएगी, and I'll not make similar mistake in my next. So practically I have explained you everything. Each step को बहुत ढंग से follow करना, and I guarantee you will definitely improve in your mock tests. For the students wondering ये कौन सा mock test है, this is mock test of www.fodo.club. You have given the first attempt of BITSAT, and many have not given the first attempt of BITSAT. So let me tell you, this is the most relevant test series that is out there in the market. It is tried and tested because जो बच्चे हमारे से फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले से जुड़े हुए हैं, they have given all the 10 mock tests, and we are giving 5 more. So in total we are giving 15 mock tests. So they have scored exactly the same marks, and they have improved a lot. They have improved a lot after joining the mocks, and they have scored the exact marks, the same range of marks they were scoring in our mocks. They have scored the same marks in BITSAT as well, so making it the most relevant. So it's proven now. As you have seen, इसमें सारे के सारे ऐसे explanations के साथ में, proper analysis के साथ में, you get everything on our platform. Plus इसके अलावा you will be added to a WhatsApp group where you can ask your doubts to Bitsians, and we are having weekly Google Meets as well, where we are guiding you on how to improve your mistakes and how to get more marks in BITSAT. So link description और comment box में दे दूँगा. Do check it out. अभी भी time है. Take the best and the most relevant mock test series for BITSAT. तो फोड़ दो BITSAT, and BITSAT में आग लगा दो, and बिट्स पिलानी आ जाओ, मज़े करेंगे. I would really like to see you as my junior. I hope this video was helpful. नीचे बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहते हो, and I will definitely make that